सागर से नदी का संगम. वाह 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 वाह. So hello viewers, welcome you all. So today in this vlog we will cover Padmanabh Temple at Tiruvananthapuram as well as backwater of Kerala. Yes, and afterward we will leave for Kanyakumari. Amazing waves and amazing view with sunset. Afternoon 2 o'clock we are leaving for airport for Rameshwaram. Yes, for this darshan we actually going to cover 2 states, Kerala and Tamil Nadu. Okay, so first we will go to the Tiruvananthapuram, then to the Kanyakumari, and lastly we will move to the Rameshwaram. कहाँ जा रहे हैं हम लोग? केरला एंड तमिलनाडु. ये किसके पास जा रहे हैं? पापा. Rameshwaram. Hi, mom. In the beginning of the trip, we forgot Manu's bag, so we took U-turn, and flight is around 5:30. My son is saying, "Show your viewers the view of Atal Setu." You can speak to This is built upon the Arabian Sea. Yeah. And we have reached at the airport, and our air services are saying that you are supposed to keep your Tetra Pak milk along with you. You cannot keep them into the luggage, which we are supposed to hand over there. So Manas is always playful. Our flight timing was keep on fluctuating, and we were seeing the airport. Airports are always good to discover new things. Here we found a rocky thing which my both kids love. It was there onto the roof area. नहीं हो गया. आप क्या ढूंढ रहे हो? मैं बैठा हूँ. आप पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ. We have boarded our flight to Thiruvananthapuram. Mama पढ़ गया. So let us see पढ़ when दिया. we are going to reach. What happened? फाड़ दिया? हाँ. नहीं फाड़ो. हाँ. फाड़ो नहीं. क्योंकि मैं नहीं पढ़ना. नहीं फाड़ना ना? आप कहाँ जा रहे हो? मैं प्लेन में जा रहा हूँ. प्लेन में जा रहे हो? हाँ. कहाँ पे जा रहे हो? प्लेन में. प्लेन में तो आ गए. त्रिवेंद्रपुरम, हाँ. रामेश्वरम. नहीं प्लेन. प्लेन. हाँ. प्लेन. सुनो. मामा देखो What's your प्लेन. idea? देखो प्लेन. आउटसाइड महाराष्ट्र. देखो प्लेन. यहाँ पे सुधार तो धूम्रपान इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का उपयोग और मदिरा पान करना सख्त मना है. About to take off. Both are busy. Say hi. Ravi. Ravi. Ravi, say hi. Hi. We are taking off. So we have arrived to the Thiruvananthapuram. Yay! And just feel loved when I saw this scenery of mother elephant and baby elephant made by flowers. Manu was also enjoying the same.
सुबह आएंगे इधर. मामा मामा देखो घंटे. We reached at KTDC Grand Chitaram Hotel, which took around 10 minutes to reach over there. The hotel was quite okay according to the price. That's and according area. To the interior also. It was okay, I can say. But according to price, it was good because I guess 3,000 was the price nearby the airport. If you are getting this much cheap, which is providing food also, that is good. So हम सब पहुंच गए हैं त्रिवेंद्रपुरम में ग्रैंड चिताराम रिसोर्ट में, और वहाँ पर हम प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट मॉर्निंग पद्मनाभ स्वामी टेम्पल की ओर कैसे जाना है. मॉर्निंग में कितने बजे उठना है, कब तक दर्शन होंगे. वहीं रिसेप्शन एरिया में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी थी जो बता रहे थे कि आप अगर मॉर्निंग में दर्शन करते हैं तो क्या टाइमिंग है, और अगर 3:30 वाला टाइमिंग अगर आप सेलेक्ट करते हैं, विच इज़ दी बेस्ट, ईदर 3:30 AM in the morning or evening in. So according to the price 3,500 or between something 3,000 to 4,000, it is the room, and the bathrooms were clean and neat. So I guess for this much price near the airport, good deal. सो वहाँ जाने के बाद में हमको पता चला कि वहाँ के खाने की फ़ूड क्वालिटी या फूड टेस्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं है. बाजू में ही एक आर्याज़ वेज एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको प्योर वेज खाना मिलता है अच्छी क्वालिटी का. In the same restaurant there were large big pictures which were depicting about the Padmanabh temple and the history of Thiruvananthapuram, which I like the most, in which we have seen various type of dance form which are popular into the Thiruvananthapuram. Moving back to the food quality of this restaurant was awesome. We ate different type of dosas, in which we like the paneer dosa the most. And before that, moving to the restaurant, I wasn't aware about the different art forms. Chekar Kattu, Nangiyar Kuttu, or something starts means Tiagra, Kathakali, and last Mohini Attam. Getting ready for Padmanabheshwar Mandir. So here is our traveler, and how many people do we have? 11. Yes, 11 people are going to use this traveler. One by one we are going to sit into that. Chalo! Yay! From the hotel, within 15 minutes we have reached at Padmanabh temple, and the ambience was just so enchanting. This enchanting environment was about Lord Padmanabhan, and there are a few rules for entering into the temple, that is that you are not supposed to carry mobile, you are not supposed to wear any cloth except dhoti for men, and if you are not having dhoti, then there are counters which will let you purchase the dhotis. So yeah, inside the temple you can carry bags, but mobiles are completely prohibited. And yeah, here you can see Kush is wearing only dhoti. The upper part should be naked for the men, and girls can wear a skirt, or you can wrap around the chunni also. It's always better to have darshan in morning time or evening time. 8:30 is not a good time for darshan because heat is too much. 8:30 also. मेरे हिसाब से तो शाम का दर्शन करना ज़्यादा ठीक है. क्यों? क्योंकि वहाँ पर दिए वगैरह जलते हैं, अच्छा दिखेगा. दिए? हाँ, दिए और मतलब
अभी तो और मंदिर, मेन मंदिर के अंदर भी लाइट से दर्शन नहीं होते हैं, दिए ही रहते हैं, तो बेटर टू हैव दर्शन इन इवनिंग टाइम. Evening time darshan is best, I guess. There you can see the beauty of Diya. Going for darshan of Padmanabh Mandir, you should have idea because there are 3 gates. On these gates you will be able to see Lord Vishnu in parts. So first part will show you their lower part, that is legs, and then middle part is there are 3 what we can say statues, and the last part, last gate, you will be able to see the hand and Lord Shiva. So for better vision, it is always better to have first look how the murti is going to be look like. It's been 3:30 and we are leaving the hotel for Attakul Mandir, and now let's see where we are going to explore. We are heading towards to the Poor Beach. Before that, on the way we were having one beautiful temple, and that temple was closed by chance. Our hard luck, I should say. So we have reached at Attukal Bhagwan Mandir. Akhand Jyot. There are a lot of, I guess in evening time it is going to look better because these are all small holes which are going to be light up during the evening time. The colors of Kerala temples are just so bright. Nice. Okay, mobiles phones are not allowed. In Black Coconut we found this structure which is known as ice apple. How does it taste? पूरा मुंह में रखो एक साथ। पूरा मुंह में रख के? मेरे को भी चाहिए आइस एप्पल, मुझे नहीं चाहिए। मेरे को भी। So the taste was not so yummy, but yeah, it was okay to taste. Beautiful coconut trees and beautiful roads towards to the Poor Beach. We are excited. इधर ही बनती है वो क्रोकोडाइल वाली मूवीज। हाँ। क्रोकोडाइल वाली मूवीज इधर बनती है? अच्छा ठीक है। तो हम पहुंच गए हैं बैकवाटर ऑफ केरला एंड इट वाज द अमेजिंग एक्सपीरियंस. हमने बस में कपड़े चेंज किए, लिटरली ट्रैवलर में हमने कपड़े चेंज किए, साड़ी वगैरह जो पहन रखी थी मंदिर के हिसाब से हमने चेंज करके फिर हमने बोट की, और बोट करने के बाद में हम जहाँ पहुँचे वो सच में हेवन था. ला पुन्नू आ जाओ. हमें यहाँ पहुँचते 5:30 हो गए थे और ये लास्ट बोट थी बीच, पूर बीच जाने के लिए. गोल्डन बीच भी बोलते हैं जिसे. और देखिए पूरी तरह से शाम ढल रही है और जो मौसम है वो बारिश का भी हो रहा था, बारिश हुई भी थी लिटरली. इतना सन्नाटा क्यों है बाहर? मैंग्रोव्स के अंदर है. Yesterday we were talking about mangroves, no? It's like water safari. बच्चों के लिए तो ये इतना ज़्यादा एक्साइटिंग था ना कि बस देखते ही बन रहा था. They were super duper excited. कोई फिश है, रिपल्स है बहुत सारे इधर फिशेस है. उधर कुछ तो कौवा है.
So scary. Scary but scary. इधर साइड पूरा शूटिंग प्लेस है ना शूटिंग प्लेस है, शूटिंग होती है वहाँ पे। जयकारा रहता है यहाँ पे पुन्नू, यहाँ पे जयकारा रहता है। हाँ हाँ, गुप्पू दीदी को बोलो जयकारा आ गया। जयकारा क्या? फिर वो लक्को ऐसा ऐसा नहीं करेगा? नहीं करेगा? क्यों? लक्को तो जयकारा को मारने में बड़ा। देखो ये मैंग्रोव भैया ले सकते हैं? पॉइजनस है? अरे बाप रे। वो देखो एक बर्ड गया। What is it? क्या? क्रेन। भीगा हुआ इसलिए कुछ अजीब ही लग रहा था। किंगफिशर था वहाँ पर, उसको नहीं ले पाई मैं। बेटा वो बैलेंस करना पड़ता है। आगे मिलेगा हमें। ये तो जंगल सफारी से भी अच्छा है। जंगल सफारी से भी बहुत अच्छा है ये। मैंने नीचे भैया। हाँ जंगल है। जंगल स्टार्टिंग है वाला। यहाँ से जंगल स्टार्ट शुरू होता है। पूरे रास्ते में नहीं है ना? वो नीचे मत डालने। Oh my God! वाओ किंगफिशर। किधर? नहीं उड़ा नहीं, वो है बीच में से। हाँ बोलो। वाटर एकदम क्रिस्टल क्लीन नहीं है। और ठंडा है, आगे क्लीन वाटर भी आएगा। बोले जंगल का। तो पेड़ है। हाँ पाइनएप्पल लगता नहीं है। सीजन में उद्योग से पानी। वो पता नहीं इधर कौन सी खुशी है। जिंदा फिशेस काटती है। और कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है क्या? मुझे तो वहाँ पे हेलो रिपोर्ट है। और पीछे पीछे क्रिएशन था। पीछे क्रिएशन था। नीचे इटू एवढं कोण राहते कभी दीदी को अच्छा में किया है। मम्मा भी मुझे किया को। चिड़िया को क्या करना है पन्नू? हाँ? क्या करना है उस चिड़िया को? कोई फिश दिख रहा है मेरे को सामने। पेट्रोल के बिना मुझे तो लगा ये वो है जो कि नोट से मैंने सर्च करने से पढ़ा था। घने जंगलों से निकलते हुए पानी के रास्ते से हम पहुंच गए थोड़े खुले एरिया में, जहां पर हमें दिखा एक फ्लोटिंग विलेज। फ्लोटिंग विलेज। मैं सोचने लगा कि गाड़ी कैसे लाए। डक्की पुन्नू, हाँ? डक्कीज है। हाँ। बारिश हो रही है? बारिश हो रही है। वाओ, बारिश में ना रही है डक्कीज। और बहुत सारे मेरी ख्वाहिश पूरी होगी, हम बारिश में नहाएंगे। कहाँ पर है किंगफिशर? क्या? चिड़िया के साइड में कहाँ पर है? छोटू सा। एक मिनट। जाने ना कट जाए जोई जाने है सामने देखो। शॉर्क। शॉर्क में क्या बड़ी बात है? ओए, बारिश आ रही है। ये आ रही है। बाबू दीदी कोई अफ्रीका के रेन फॉरेस्ट। हाँ अफ्रीका के रेन फॉरेस्ट में ही लग रहा है। बारिश भी आ रही मम्मी है। रेन फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। अब बोलिए इक्वेटोरियल। हाय बाबू, हाय।
आपको क्लब महिंद्रा के रिसोर्ट केरला में जो है वहाँ पे ये इन होटल्स का फ़ोटो ज़रूर देखने को मिलेगा। और हम पहुँच गए हैं गोल्डन बीच। आप देखो सुंदरता तो मतलब जितनी बोली जाए ना वो कम है, तारीफ़ जितनी की जाए इस बीच की उतनी कम है। उधर से अरेबियन सी, ये वाला रिवर है। ये वाला रिवर है। ये रिवर का नाम क्या है? नहीं यार, संगम, सागर से नदी का संगम। वाह 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 वाह। और जो बोट से उतर के हमने जो नज़ारा देखा, हेवन। और यहाँ मानू की मस्ती ख़त्म ही नहीं हो रही है। लोग नहीं, ओ भाई संगम है, संगम कुछ ऐसा बता रहे थे। हाँ, वो वेव कितनी बड़ी आई है। मैं तो सभी व्यूअर्स से कहूँगी अगर केरला गए हैं ना तो ये तो मस्ट टू डू लिस्ट में डालो कि बैक वाटर तो जाना ही जाना है। ये बीच, गोल्डन बीच तो जाना ही जाना है जहाँ पे नदी और सागर का संगम हो रहा है। देखिए कितना प्यारा व्यू है। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे हेवन में हम लोग आ गए हैं, एकदम एंजल्स की तरह। मम्मा बोले अलाउड क्यों नहीं करते जाने के लिए? It's too risky, no? जाके देखो उधर भी लोग नहा रहे हैं। It's too risky. See how much big wave it is. Whoa! मानस, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मैं बनाई हूँ। क्या बना रहे हो? It's insane view. 5:30 वाली बोट हमको काफ़ी महंगी पड़ गई क्योंकि हमें बीच पे रहने का बहुत कम समय मिला, पर जो भी समय मिला ना हमने थरोली एंजॉय किया। और देखिए शाम पूरी तरीके से ढलने लगी है और ऐसा लग रहा है बादल जो है वो सागर के साथ में भी मिक्स होने वाले हैं। It's just wow to be there, seeing sun and moon together, sea and clouds together. Wow. Clouds, water and sun. All natural beauties are together. Yay! Natural beauty. नहीं कर दीदी को लग रही है। सॉरी बोलो, सॉरी दीदी को लग गई ना। और हमको देखेंगे नाइट टाइम टीचर, नॉट टाइम। नंगू को दिखाओ ना। कौन है नंगू को? कैसे को हाय कर दो। ऐसे हिला दो ताकि ऐसे। पर ये लोग इधर क्यों आए? To see that statue. ये वाला ना मतलब मेरी के स्टैचू है भैया। हाँ। पीछे ना चर्च है ना भैया। हाँ, जय जय कर लो, हाथ जोड़ो, जय जय कर लो। भगवान मदर मैरी है ना, जय जय। बड़े तो क्रिश्चियन है। हम तो सबको मानते हैं ना। क्या हो गया? हम तो हिंदू है। हिंदू सबको मानते हैं। जो यकीन मानिए रात हो गई थी, लिटरली पूरा अंधेरा हो गया था और जाते वक्त बारिश भी शुरू हो गई थी इतनी तेज, तो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ये राइड जो है ये तो लाइफ में कभी भूल ही नहीं सकती मैं। देखिए डर ज़रूर लगा, लेकिन जो शाम ढलने के बाद में रोशनी होती है, वो रोशनी, वो लाइट्स, वो तो शाम को ही मज़ा देती है ना। तो वो चीज़ जो थी हमने एंजॉय करी, जहाँ पे भी दिख रही थी और जहाँ पे घना अंधेरा था। ओ माय गॉड, डर भी लग रहा था। का मिनिस्टर का रिसोर्ट है। ओके, मंजिलें ये सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां। बोट आ रहा है। बोट पे अटैक करते हैं।
तिरुवनंतपुरम में पद्मनाभ मंदिर के दर्शन करने के बाद में हम पूरर बीच पहुँचे और यहाँ से हम जाएंगे कन्याकुमारी। आपने ऑलरेडी मेरे बहुत सारे व्लॉग देख लिए हैं कन्याकुमारी पे, बट हाँ वहाँ पे मज़ा बहुत आया था। भाई फैमिली है, माहौल है और अंताक्षरी ना हो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो हम कन्याकुमारी पहुँचे अंताक्षरी खेलते खेलते। जो फैमिली के साथ में मज़ा है ना ट्रैवल करते वक्त, जो फ्रेंड्स फैमिली के साथ में वो किसी में भी नहीं है। अभी रात के 11:15 हो रहे हैं और हम पहुंच गए हैं तमिलनाडु स्टेट में। तमिलनाडु में हम पहुंचे हैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी is known as the last land of India. It's morning time, 6 o'clock, and we woke up early so that we can see the sunrise from the end of land of India. There from our hotel we could see the ocean. If you could see, there is a place where they all gathered to see the sunrise. Oh my God! This is the statue. मज़े की बात ये है कि हम तमिलनाडु स्टेट में हैं और हमारे होटल का नाम भी तमिलनाडु है। Isn't it a good coincidence? See that view. ज़रा सोचिए, आप सुबह सुबह उठे हैं और सुबह सुबह उठते ही आपको समुद्र की लहरों की आवाज़ आए और आपको पता है कि यहाँ से एक ब्यूटीफुल सनराइज़ दिखने वाला है। वाओ! क्या खत्म? धरती खत्म। हाँ धरती खत्म। इसके बाद कुछ भी नहीं है, देख कुछ भी नहीं है फिर इसके बाद। हमेशा सिर्फ सुनते हैं एंड ऑफ द लैंड, एंड ऑफ द लैंड। सोचा कभी जाएंगे लेकिन कभी जाएंगे। सो आज हम आ गए हैं फाइनली एंड ऑफ द लैंड कन्याकुमारी। कन्याकुमारी एरिया वाइज छोटा है लेकिन मॉर्निंग से ही यहाँ पे टूरिस्ट लोग इतनी ज़्यादा चहल पहल शुरू हो जाती है। यहाँ साइड में आप जो देख रहे हैं ना, ये वॉल कन्याकुमारी टेम्पल की वॉल है और इसके एडजेसेंट ही सी है और यहाँ से आपका सनराइज़ पॉइंट है एज वेल एज फ्रॉम हियर यू कैन गेट द फेरीज टू रीच अप टू द विवेकानंद रॉक मेमोरियल। तो देख रहे हैं ना आप, मॉर्निंग के अभी 6:30 हुए होंगे और यहाँ पे कितना ज़्यादा क्राउड है। इसके साथ साथ में अर्ली मॉर्निंग और अर्ली टू बेड ऐसा है कन्याकुमारी। आपको 8 बजे के बाद में बेयरली कोई शॉप खुली मिलेगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो कन्याकुमारी माता जी का मंदिर है, इट्स जस्ट वाव। अब हुआ यूँ है कि यहाँ कन्याकुमारी में हमने पूरी 2 रातें गुजारी है, तो हमें समय बहुत मिला है कन्याकुमारी को एक्सप्लोर करने का। यहाँ पर जो एक अच्छी चीज़ है वो ये है कि बार्गेनिंग आप जितना कर सकते हैं वो करिए। शॉपिंग के लिए बहुत सारी शॉप्स मिलेगी और हमने यहाँ से करीबन 10 साड़ियाँ और बहुत सारी ज्वेलरी मैंने ख़रीदी थी, सिर्फ अकेले मैंने। तो कन्याकुमारी इज़ माय फेवरेट, नो डाउट इन दैट। मैं ऑलरेडी कन्याकुमारी पे बहुत सारे व्लॉग बना चुकी हूँ। इवन विवेकानंद मेमोरियल, रॉक मेमोरियल पे मैंने एक अलग से व्लॉग बनाया है। आप जाइए, चेक करिए। मैं कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी आपको। हमने यहाँ पर खाना, फन, एक्टिविटीज़, शॉपिंग, क्या क्या कुछ नहीं किया।
कन्याकुमारी तो जाना बनता है बॉस। इस स्पॉट पे तो मुझे बहुत पीस मिला था और शॉपिंग भी हमने यहाँ पे खूब जम के की। डू लाइक एंड सब्सक्राइब।